नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है IBC 24 प्रेजेंट्स सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके प्रस्तुत करता है जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन। तो आज एक फिर से नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आज हम पहुंच चुके हैं NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में, जहां ट्रैफिक अवेयरनेस को हम फिर से एक नए सिरे से बच्चों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रिंसिपल NH गोयल वर्ल्ड स्कूल वो आए और इस सेशन की शुरुआत करें एक छोटे से एड्रेसिंग के साथ। सर प्लीज। The dignitaries from IBC 24 and Traffic Police Department and my dear students and children. IBC 24 and Traffic Police, they have taken wonderful initiative to make everyone aware of the importance of the safety rules and regulations of traffic. It is something quite related to life and death, and everyone must follow these safety rules and regulations. Whatever they are insisting, they are all for our safety, security, and life. In media, you have seen there are so many incidents there, the way they show, really watching these incidents very painful to everyone. This is the matter of following the rules and regulations. Everyone must understand the importance of these and must follow strictly. Don't leave any chance. It takes fraction of seconds for any accident, which leads to anything for your life and for others as well. And be careful. Follow all the instructions of your parents, elders, teachers, and the police and media, whatever they convey good messages. All the best, children. Thank you so much for taking this initiative and educating all the children, young generations who will be the future leaders. Okay? All the best. तो चलिए फिर से डिबेट कंपटीशन के जरिए आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और साथ ही साथ पेंटिंग कंपटीशन के जरिए भी बच्चों के थॉट्स जो ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर हैं वो आज वो लोग सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। Should road safety lessons be part of the school curriculum? In today's world, we all are road users, whether we are pedestrians or motorists. The present transport system has been able to minimize the long distances, but on the other hand, it has also increased the risk of many lives. Every year, we lose thousands of people to car crashes and many people to serious injuries. In most cases, crashes occur due to carelessness or due to lack of safety awareness. And this, my friends, is the most crucial reason for the dilemma we are currently in. Hence, road safety education is as essential as any other basic skills of survival. I am always ready to learn. However, I do not always like to be taught. I am Parth Singh here to strongly oppose the motion that school norms, road safety education should be incorporated in the school curriculum. There are many things which come across us as a compulsion or as a rule, and we do not always like it, but we have to accept it. Road safety education is one of them. We come across many rules of road safety education and we do follow them at times. But is it necessary to introduce them into a school curriculum? In my opinion, it is not that necessary. My worthy opponents might say that incorporation of road safety regulations in our school would be an commendable initiative. But I really don't think so. It would increase the burden on the students and would gradually not be that beneficial. आपने बोला कि स्कूल में इसको सिखाना is not an good way of incorporating all these values in a person. So can you आप कोई और method बता सकते हैं? See, our topic is completely taking it into the syllabus, right? We are inculcating in our syllabus. I'm saying that not to inculcate in our syllabus, but to keep separate workshops, and moreover, they can be taught at home. It is not a thing which should be taught at school.
I strongly support the motion. The other day I was on a two-wheeler visiting my friend's place. Driving in the rightmost lane, there was this biker up ahead of me. Suddenly, this guy out of nowhere realizes that he has to take a hard left turn. This guy, not aware that there are other people except for him driving on the road, does so without any care whatsoever. In this process, he crashes with the car in the adjoining lane and nearly runs over two pedestrians. This is a very humble example for the condition on our roads today. Also, when a majority of us wants to cross the roads, a hidden sprinter within us wakes up. He escapes collisions in literal split seconds. I mean, it's not as if a magic show on our roads. However, coming to a serious note, here's a fact. 16 children lose their lives every single day to such idiots on the roads. Research has shown that even if our population knew the even most basic of road safety regulations, over 70,000 lives could be saved each year. To put this into perspective, 137,000 people died in road accidents last year. This number is greater than the men who died fighting for our nations in all its wars put together. So, do you still feel safe out there? I today strongly support the motion that yes, traffic regulation should be a part of the school curriculum as they instill good habits in children from a very early age. It puts into practice a good habit which remains with them all their lives. Learning about the right of way which is given to pedestrians, learning how to take a correct turn and how to avoid crucial split-second disasters. Your examples have been thoroughly accepted. However, in my opinion, like the statistics that you told us about, do you not think that a majority of the people that are on the roads are already educated? A lot of the students here, once in their lifetime, have already faced an accident. And most of the times, they've also been the reason for the accidents. All of us know about safety regulations to a certain extent, don't we? Then why do we not follow it? So what will those 40 minutes do if nobody is actually implementing them in the real life? I do not see a point. Your destination is a reward for your safe journey. However, have we come to a point wherein we need to introduce road safety into our syllabus? I think not. Today, I, Arundhati Bhagwat, am here to strongly oppose the motion road safety should be incorporated in our daily syllabus. Now, road safety is, in today's date, amongst the most oppressive social issues that we face, especially in our own country, India, where there are where just in the year of 2015, 5 lakh accidents took place. However, I do not believe that the answer to this solution is just incorporating a 35-minute subject in our daily schedules. And it is suffice to say, my dear friend, and so, my dear friends, it is suffice to say that we do not need to add an extra 35 minutes to a timetable that's already on the verge of overfilling. Nothing is more important than transportation, and nothing is more harmful than irrational transportation. And what gives birth to this irrationality is the fact that every day more than 20 children under the age of 14 die because of road accidents. And the reason behind this is lack of road safety awareness. I think hardly anyone in the audience, student or teacher, needs convincing that students today are already burdened by a vast academic syllabus and extracurricular activities and do not need anything more added to their already full plates. The youth is what we have for our future. It is the youth that will develop the country. And if we do not save it, it is what we say, to dig our own graves. So now we know that we need to save our youth. But do you know, 8% of the youth die on the roads itself. We need to save our youths. The major reason why the youth lose their lives on the road is lack of road safety knowledge on them. You speak about teaching the children or students about the rules, how to be on the roads, how to drive, what rules they have to follow. But do you think the people who actually cause some accidents, they don't know that you don't have to drive on the wrong side of the road? You have to put your blinkers on when you're on the wrong side of the road. The people do not know that, or is that they're just careless? The youth, we are going to teach the youth. The youth is our future. If we teach them, they are going to be good adults and they are going to follow it. And if we teach the youth right now, it might be possible that they take initiatives and they teach others about this. Everything spreads, nothing remains at the place. So if we teach the youth, that is the main thing, that is the most productive thing of the country. It will go to everyone.
तो फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा ये सफर, जहां ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के बच्चों के बीच में। देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में बच्चे कितने उत्साह के साथ अपनी बातों को पेंटिंग कंपटीशन के जरिए प्रेजेंट करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आईबीसी 24 प्रेजेंट्स सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके प्रस्तुत करता है जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन, जहां आज हम है एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल बच्चों के बीच में पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन के जरिए ट्रैफिक अवेयरनेस को उनके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन क्या है। हर बार जो हम 2 सेशंस रखते हैं, डिबेट कंपटीशन और साथ ही पेंटिंग कंपटीशन, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के जरिए, अपने डिफरेंट कलर्स और ड्राइंग्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने हद तक ट्रैफिक रूल से अवेयर है। तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ नया वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि लोग जब जेब्रा क्रॉसिंग से जाते हैं तो गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसका सही तरीका ये है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर्स गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं तो भी बहुत लोग चले जाते हैं गाड़ी रोककर, और यहाँ वो नहीं, इंस्पेक्टर रोक रहे हैं पर उन लोग रुक जा रहे हैं। मैं अपनी ड्राइंग में बता रही हूँ कि हमें जब भी ड्राइव करते हैं तो हमें हेलमेट पहन के ड्राइव करना चाहिए। तो बच्चों ने बताया कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है। इन्होंने बताया कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो भी आपका एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है। चलिए, और भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने काफी क्रिएटिविटी दिखाई है, कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे इनकी ड्रॉइंग में। आप बताएं क्या बनाया आपने? हमारे लिए ही नहीं, पर हमारे जो हमसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए ही सही हमें हमारी सेफ्टी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और शायद हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। क्या बना रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमको ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। अगर वो रुकने को कह रहा है तो रुकना चाहिए। इस पिक्चर में मैं शो कर रही हूँ कि हमें रोड सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। इसमें मैंने दिखाया है कि हमें हमें ट्रैफिक पुलिसमैन जो भी बोलते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। हमें हेलमेट पहनना चाहिए और सारे रोड साइंस अच्छे से फॉलो करने चाहिए। जी, रोड साइंस को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड वो हमारी लाइफ के लिए है, हमारे लिए है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, बी कूल विथ ट्रैफिक रूल, तभी पूरा हो पाएगा जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, वो भी खुशी खुशी कूल होकर फॉलो करेंगे, बिना किसी डर से। और इसी चीज को आज हम एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल बच्चों के बीच में एक नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी ये अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़ाएं, उनमें भी ये ज्यादा अवेयरनेस बढ़े, इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम बुलाते हैं हमारे ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर को। मुझे इस सेशन का बेसब्री से हमेशा इंतजार रहता है, बिकॉज हमेशा कुछ नई चीजें जानने को मिलती हैं। कई बार हम जो चीजें फॉलो करते हैं, हम जो चीजें रेगुलर बेसिस पे जानते हैं, लेकिन भोई साहब उन्हें इतने नए तरीके से बताते हैं कि आई फील कि नहीं भाई, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे उन लोगों को भी रोकना चाहिए जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या मुझे उनको भी गाइड करना चाहिए। तो अब मैं सेशन टीके भोई साहब को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। यातायात नियम को इतना सरल है कि इसमें एक्स्ट्रा बोझ वाली आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, इसमें 45 मिनट जो 35 मिनट्स के जो परेड होते हैं, वो परेड भी जो क्लासेस होते हैं एक परेड का, उसकी भी लिए आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। यातायात नियम ऐसा बनाया गया है कि चलिए, ये भारत पूरे विश्व में, पूरा इन ओवरऑल वर्ल्ड में कि बहुत सारे भाषाएं हैं, लेकिन मान लिया जाए आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन रसिया भाषा, जापानी भाषा तो नहीं जानते। यदि मान लिया जाए हिंदी में लिखा है टहरिया, अंग्रेजी में लिखा है स्टॉप लिखा है, उसी चीज को हम जापानी भाषा में लिख लें और आप वहां जापान में घूम रहे हैं तो नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए एक सिंबल बना दिया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन की जितने भी मेंबर कंट्री हैं, सभी देशों में इसका पालन होता है। नंबर 1 कि पूरे यूनाइटेड नेशन में लगभग 193 देशों हैं, 193 देशों में ये सिंबल को मानते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में घूमे आप, चाहे जापान में घूमे आप, चाहे उड़ीसा में घूमे आप, चाहे रसिया में घूमे, लेकिन वहां का जो यातायात के नियम, ट्रैफिक नियम है,
ट्रैफिक रूल्स है सभी का बराबर है। वहां का ड्राइविंग सीट बदल सकता है, एक ड्राइविंग सीट बदल सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो सकता है, लेकिन जो सिग्नल्स हैं, जो सिंबल है और सड़क पर जो पड़े रहते मार्किंग है, वो मार्किंग सभी एक ही है। भारत संघ इंडिया यूनियन में एक नियम है, कोई भी यदि लाइसेंस बनाता है, कोई भी लाइसेंस बनाता है तो उसको मामूली परीक्षा से उसको गुजरना पड़ता है, छोटी सी एग्जाम से। वो एग्जाम होता है यातायात नियमों के बारे में उसको जानकारी है या नहीं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूछता है। लेकिन उस परीक्षा को हमने पास करते हैं तभी हमको लाइसेंस इशू करता है। So फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो टीके भोई साहब ने हमारे बीच रखा, बताया, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स की अहमियत को समझाया। मुझे उम्मीद है ये सेशन बच्चों के लिए बेहद प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने समझा कि कितना ज्यादा जरूरी है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ये इसके लिए हमें ना कोई मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, हमें ना कोई ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को सेफ कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद बारी है रिजल्ट्स अनाउंसमेंट की। तो हम रिजल्ट्स अनाउंसमेंट का सेशन देखते हैं और जानेंगे कि आज के विनर्स कौन होते हैं। तो जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है, यानी कि द्वितीय स्थान, उनका नाम है, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरुंधति भागवत। जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उनका नाम है क्षितिज वाधवा। So guys, give a big round of applause for all the participants. दोस्तों, डिबेट कंपटीशन के विनर्स तो हो गया, बारी है पेंटिंग कंपटीशन के विनर्स के नाम जानने की। बच्चे काफी ज्यादा क्रिएटिव दिखाई दिए हैं। क्रिएटिविटी उन्होंने अपनी ड्राइंग और अपनी पेंटिंग के जरिए सामने लाने की कोशिश की है। बताया है कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जो छोटे छोटे रूल्स जिनसे वो अवेयर हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए दिखाया। तो चलिए देखते हैं इनमें विनर कौन होता है। तो रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं ड्राइंग कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन के, एंड आई होप आप में एक्साइटमेंट बरकरार होगी। सो ऑल यू गाइज आर एक्साइटेड? यस। तो चलिए अब हम नाम अनाउंस करते हैं, और सबसे पहले हम जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है उनका नाम अनाउंस करते हैं, और वो है 7th क्लास से खुशी सोनकर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खुशी। प्लीज आप सामने आए और सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। और अब जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, उनका नाम है श्रुति गुप्ता। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। श्रुति ने अपनी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंट कलर्स के साथ और साथ ही मैसेज और स्लोगन्स के साथ भी प्रेजेंट किया। अब साथ ही जो हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन के जरिए ट्रैफिक रूल्स को दिखाया, उनके लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स है। मैं 1 बाय 1 अनाउंस करूंगी, आप लोग आए और अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। दूसरों को समझाने के बजाय हम खुद समझें। शायद हम अगर यहीं से शुरुआत करें, यहाँ पे आई थिंक अमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स होंगे, अगर हम ही एक ओथ ले लें कि नहीं हम सुधरेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तो शायद हमें देखकर हमारी फैमिली, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन और शायद हमारा फ्यूचर सभी सिक्योर रहेगा। लेट्स टेक अ ओथ। हम सुरक्षित रहेंगे, हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, हम ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए दूसरों को भी सिखाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी समाज को सुरक्षित करेंगे, हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद। दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए स्कूल में, नए बच्चों के बीच में, नए जोश और नए उत्साह के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप आज के बताए हुए सेशन को एक रिकॉल करें। आप याद रखें कि अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। और आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। तो इन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने देश को भी सुरक्षित करने में अपना एक योगदान दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।
हैं।